चलो स्टार्ट करते हैं। So are you able to see the screen, everyone? Hello. Good morning, ma'am. Hello. Hanji, good morning. Good morning, ma'am. my dear students. Good morning, A very ma'am. good morning to you all. Hanji, I just wanted to use this platform to wish you all the best for the new odd semester. I hope you all are safe and are staying at your homes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Ah, Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm sure you all can appreciate that this is the best that could be done because of the pandemic. Classes are being held online, and I request all the students, every one of you, please note that you have to attend to these classes very regularly. Attendance will be taken properly, and if in case you are short of lectures, you may run into trouble. So please see to it that you come attend the classes regularly and do. The teachers are working very hard. Your HOD, Dr. Anil, and the other faculty members, they are working very hard for these classes to run. So please see to it that you attended in a disciplined way. Anything else that you would like to share with me? Student, anyone want to ask anything? Any student? No. Attend to the lecture so that later on when faculty members they give you assignments, you can handle those assignments well, and please try to do the work on time. Revise the lectures when you go back. You have got ample time at your disposal now. Yeah, so thank you very much. Thank you very much, and it was nice talking to you once again. Thank you. So, Thank you so much, Dr. ma'am. Anil, you can continue with your lecture. Thank you. Okay, Thank you. Thank you. Thank you so much, Thanks ma'am. for coming. Thank you, ma'am. okay, okay. Thank you so much, ma'am. तो अच्छा, मेरी आवाज जो आ रही है ना सबको? हाँ जी सर आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा लाउड या ज्यादा कम, अगर कुछ प्रॉब्लम है बता दो, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता। सर थोड़ी हाँ, सी कम है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। Yes, sir. थोड़ी कम है या ज्यादा है? मतलब लाउडनेस ज्यादा है या कम है? सर नहीं, चुप के आ रही है, मतलब आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा, कम आ रही है। Yes, sir. कम आ रही है। ओके, गिव मी 2 मिनट्स, फिर मैं चेकिंग देखता हूँ कैसे सेट कर सकता हूँ। हेलो। कुछ फर्क पड़ा कि वैसे ही है अभी भी? ठीक है सर। Yes, sir. Yes, ठीक है सर, ठीक है। Hello. Yes, sir. You can continue, sir. ओके, Yes, sir. एक बार फिर थोड़ा सा देख लेता हूँ। सर अब आवाज ठीक आ रही है आपकी हमें। अब ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, फिर प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन।
सर आइसोलेटेड सिस्टम तक हो गया था, एडियाबेटिक आ गए थे। अच्छा सर नोट्स अभी बनाने हैं साथ के साथ नोटबुक लेके हाँ, जाना है? मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम अभी ना ऐसा करो, सभी जो है अपना अपना एक रजिस्टर लगा लो उसके लिए, हाँ जी। और जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसको जो है राइट डाउन करते रहो जितना तुम्हें समझ आता है, ठीक है। एक ओके मिनट सर, बनाए ओके। सर, एक जितना भी तुम यू कैन एबल टू राइट डाउन, यू कैन मतलब नोट इट डाउन। एंड वैसे मैंने जितने भी लेक्चर्स हैं ना, ये आई एम ट्राइंग टू दिस प्रेजेंट ऑल दिस लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। मैंने लास्ट लेक्चर डाला हुआ है, अगर आपने किसी ने चेक किया हो, आई थिंक देखा है किसी ने, सर तीन वो वीडियो 4 का बच्चों ने देखा है। सर हाँ जी हाँ जी। सर वो वीडियो मैंने लिंक वो किया था, वो प्राइवेट दिखा रहा था, अच्छा, वो खुल नहीं रहा। नहीं खुल रहा है सर। ओके, मैं उसको उसकी ना वो जो है आई थिंक सेटिंग उसकी चेंज कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो ओके सर। यू कैन एबल टू सी, पर उसमें ना साउंड की प्रॉब्लम है, आवाज़ बड़ी कम थी मेरी उसमें, तो आवाज़ की आज भी दिक्कत आ रही है। तो मैंने अभी हेडफोन मंगाए हैं नए, देखते हैं उसमें शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो लास्ट टाइम जो ओके सर। हमने जो डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने इसको समझा था कि थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है इसका क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कांसेप्ट ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। We also discussed open and closed system. We were just completed up to adiabatic system, isolated and adiabatic system. So now we just go straight to the adiabatic system. ये last time जो रह गया था ये, तो ये वैसे लेक्चर प्रेजेंट है वहाँ पे, आप ये प्रेजेंटेशन है उसके अंदर, वो देख लेना आप, ठीक है। Now this is adiabatic system. स्क्रीन ये फ्लिकर कर रही है ना थोड़ी। हेलो हेलो। ओके, एडियाबैटिक हाँ जी सिस्टम सर। जो है हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ये तीनों सिस्टम हमने जो है डिस्कस किए थे। तो ओपन सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि इसमें एनर्जी और मास दोनों जो है अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं बाहर। क्लोज सिस्टम में जो है मास जो है वो इट कैनॉट एंटर इनसाइड द सिस्टम, बट एनर्जी कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम जो आपने एग्जांपल दी थी कि जैसे थर्मस है, तो उसमें ना तो यस सर। हाँ, उसमें ना एनर्जी अंदर आ सकती है, ना ही मास जो अंदर आ सकता है, ना ही एनर्जी बाहर जा सकती है, ना ही मास बाहर जा सकता है। तो इस तरह से ऐसा कोई भी सिस्टम, ठीक है, वो उसको हम आइसोलेटेड आइडियल सिस्टम कहते नहीं। हैं। बट इन आइडियल यू कैन से कंडीशंस देयर इज नो सच परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन उसको हाँ उसके हम काफ़ी क्लोज पहुंच सकते हैं। अब इन सबसे हटके जो है दिस इज एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। एडियाबैटिक सिस्टम में क्या है कि इस सिस्टम में यू कैन, अगर ध्यान से देखो आप, तो यू विल नोटिस दैट इन दिस मास सिस्टम, कैन। हाँ, इसमें मास जो है सिस्टम के अंदर आ सकता है, मास सिस्टम से बाहर जा सकता है, बट एनर्जी जो है इंट्रैक्शन नहीं हो सकती इसमें। यानी कि इसमें अब ये जो क्लोज सिस्टम का थोड़ा सा उसका जो है डिफरेंट जो एक वो है वर्जन है। क्लोज सिस्टम में क्या था कि मास अंदर आ सकता था, मास अंदर जो है नहीं आ सकता, लेकिन एनर्जी आ सकती थी। अब यहाँ पे उल्टा है, अब यहाँ पे मास आ सकता है, एनर्जी नहीं आ सकती, ठीक है। यस सर। तो सच अ सिस्टम इज नोन एज एडियाबैटिक सिस्टम। अब एडियाबैटिक सिस्टम में अगर एग्जांपल हम देखें, मोस्टली हमारी जितनी भी टरबाइंस होती हैं, ठीक है, स्टीम टरबाइंस, या फिर हमारे इंटरनल कंबशन इंजन हैं जो हमारी गाड़ियों में लगते हैं ना, कार के अंदर, ट्रक्स के अंदर, इन सब के अंदर जो है वी ट्राई टू यू कैन से अचीव एडियाबैटिक सिस्टम टू सम एक्सटेंट। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब बेसिकली एडियाबैटिक सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने अगर आप देख रहे हो उसमें कि मास जो है इंट्रैक्शन कर सकता है सिस्टम में। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम उसकी, टरबाइन के अंदर जो है मास किस फॉर्म में अंदर आएगा, एनीवन? अगर टरबाइन की बात करते हैं तो उसमें मास जो है किस फॉर्म में अंदर आ रहा है, किस फॉर्म में बाहर जा रहा है? टरबाइन के बारे में पता है किसी को? सुना नहीं होगा। टरबाइन। स्टीम टरबाइन। चलो इंजन के बारे में पता है सबको, आईसी इंजन यस सर, होता है। टरबाइन सुना। हाँ, चलो इंजन के बारे में तो पता होगा। यस सर, टरबाइन होती है। हेलो।
हाँ हाँ हेलो ओके ओके कीप ऑन हेलो तो जो है इंटरनल कंबशन इंजन की एग्जांपल लेते हैं उसमें जो है यू कैन सी दैट उसमें जो फ्यूल है एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है पहले इनलेट वाल्व से। हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, यस आ सर रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा तुम्हें हेलो नहीं आ रही होगी। हेलो 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 गगन एक बार लीव करके ज्वाइन कर ले, सर की आवाज क्लियर आ रही है। सो उसमें इंटरनल कंबशन इंजन में एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है इन द फॉर्म ऑफ मास वो अंदर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें पावर स्ट्रोक होती है, जब उसमें इग्निशन होती है, उस समय क्या है कि वी डोंट वांट टू लूज द हीट, क्योंकि जिस समय स्पार्क होता है उस समय एयर और फ्यूल को जो है क्या होता है अचानक इट विल कैच फायर और उससे क्या होती है एक्सपेंशन होती है। इट विल पुश द पिस्टन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। So at that moment we do not want to lose any heat to the surroundings, क्योंकि we want कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है वो सारी की सारी जो है वर्क में कन्वर्ट हो। सबको सुन रहे हैं ना, ये आवाज आ रही है? तो दैट सिस्टम यस सर यस सर यस सर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस सिस्टम को हम कुछ हद तक हम वी कैन से इट इज अ एडियाबैटिक सिस्टम, क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हम मास को तो अलाउ कर रहे हैं अंदर आने के लिए कि मास जो है इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर वो पिस्टन के अंदर आ सकता है। लेकिन जिस समय मास के अंदर जिस समय वहां पे पावर जिस समय इग्निशन हो रही है, जिस समय वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट को हम बाहर नहीं देना जाके देना चाहते। वी डोंट वांट टू लेट द हीट मूव आउटसाइड द पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। तो इसमें यहाँ पे मैंने शायद एक डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना ये सिस्टम और ये पिस्टन है पीछे, ये वाला। तो ये बनाता हूँ मैं। नाउ लेट अस टेक दिस लाइक ये एक सिलेंडर है, दिख रहा है ना सबको? हेलो यस सर यस सर अब यहाँ पे हमारे एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है पिस्टन आईसी इंजन के अंदर। अब जब एयर और फ्यूल अंदर आएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है मास अंदर आ रहा है। अब मास अंदर आने के बाद क्या होगा, ये पिस्टन जो है जब पीछे जाएगा तब तो ये इसको सक करेगा, मास अंदर आएगा। जब पिस्टन ये फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, उस समय ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे, ये वाला वाल्व और ये वाला इनलेट वाल्व आउटलेट दोनों जो है इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व जो है ये क्लोज होंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है स्पार्क होगा इस तरह से। जब ये स्पार्क होगा इट विल पुश द पिस्टन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एट दैट इंस्टेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी हमारी यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है पिस्टन इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर के अंदर, वो सारी की सारी वर्क के अंदर कन्वर्ट जो है आगे कन्वर्जन होगी उसकी। तो उस समय वी डोंट वांट टू लूज एनी हीट टू द सराउंडिंग्स। so that is why this type of system is known as adiabatic system, but this will remain only for a fraction of a second, ठीक है। ये सिस्टम जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है स्टेट पे, तो क्योंकि उससे पहले वो एक ओपन सिस्टम था, उसके बाद एडियाबेटिक सिस्टम बन गया, उसके बाद फिर ओपन हो गया, तो इस तरह से ये चलता है। नाउ लेट अस मूव टू द दिस नेक्स्ट स्लाइड। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद सर दिवांश कह रहा है उसे स्क्रीन नहीं दिख रही सर, मैसेज किया है उसने। एक्चुअली जिसको अपने एंड पे नहीं दिख रही ना उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्रीन जो है उसमें आपको दिख रही है ना सबको, बाकियों को दिख रही है? यस सर यस सर हाँ तो फिर वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना
आई थिंक उसको रीजॉइन कर ले वो एक बार, ओके सर। या फिर मैं दोबारा इसको फिर शो करता हूँ, एक मिनट देखते हैं। शेयरिंग आई थिंक जो दोबारा ज्वाइन करते हैं शायद ना दिखता हो। सर उसने रिज्वाइन कर लिया, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। कर रहा हूँ मैं तो, भी हो नहीं रही। मेरी आवाज आ रही है? ये सिस्टम मेरा थोड़ा हैंग हो गया। हेलो हाँ जी सर। जी सर आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसी बात करते हैं। नाउ जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ऑल द सिस्टम, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जो है सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा फिर आपको जो है रिव्यू कर देता हूँ कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ओपन सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है सिस्टम जो है कोई भी सिस्टम, सेकंड होता है सिस्टम बाउंड्रीज, और एक होता है सराउंडिंग, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लासरूम की कि whenever we consider these systems we can easily correlate with our classroom। जैसे कि अगर क्लास के डोर्स और विंडोज खुले हैं तो वो क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अंदर आ सकता है, कोई स्टूडेंट बाहर जा सकता है। हवा यहाँ विंडो से अंदर आ सकती है, डोर से बाहर जा सकती है। तो उसमें क्या हो रहा है, हीट और मास दोनों जो है उसमें अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हाँ, सनलाइट अंदर आ रही है, सनलाइट बाहर जा रही है, ठीक है। अगर डोर्स और विंडोज बंद कर दें तो अब क्या होगा, मास इंटरेक्शन जो है खत्म हो गया, उसमें वो क्लोज सिस्टम बन गया। लेकिन उसमें लाइट अंदर आ सकती है, उसमें हीट अंदर आ सकती है। तो नाउ इफ अ क्लासरूम विद अ क्लोज विंडोज एंड डोर्स इट बिकम्स अ क्लोज सिस्टम। उसी तरह लास्ट जो है आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो क्या होता है, जिसमें कि ना तो हीट अंदर आएगी ना ही मास जो है अंदर आ सकता है। जैसे आपने बताया था थर्मस, एडियाबैटिक हमने डिस्कस कर लिया। हेलो आ गया। ओके, दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वो सिस्टम मेरा हैंग हो गया था। सर ये दोनों दोनों ऐप्स में सर बहुत ज्यादा बग्स है, मेरा भी मोबाइल हीट अप हो रहा है बहुत ज्यादा। तो क्या करें, अब जूम पे करें कल फिर नेक्स्ट जो क्लास है? सर देख लीजिए कोई और ऐप देख लीजिए, इस पे भी जूम पे भी बहुत ज्यादा वायरस और बग्स है सर। सर बहुत ज्यादा हीट अप होता है मोबाइल। एक्चुअली पता है कि इसमें सिस्टम हीटअप का रिसोर्सेस तो सर कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं ये है तो सर। स्क्रीन शेयर में सर 2 ही बंदों को स्क्रीन शेयर होती है, बाकियों को नहीं होती स्क्रीन शेयर। सर जूम पे सबको दिखाई देता है सर। अच्छा नेटवर्क मेरा बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही होता है क्या? सीरियसली मुझे तो लगता हाँ नहीं ऐसा। जी सर। इज इट सर नॉट? अभी पुरुषोत्तम ने बताया हमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उसने पता क्या बताया है, उसने बताया कि दो सर की सर दो जगह तुम्हें दिखाई देंगे, 2 स्क्रीन के नीचे है ना जो, ये 2 जगह दिखाई
अगर दूसरी वाली पे क्लिक करेगा तुझे स्क्रीन शो हो जाएगी, ये कहा है उसने। तो ये ऑप्शन बताया उसने कैसे शो करनी है स्क्रीन अपने आप को जो शेयर कर रहे हैं। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जो है स्क्रीन बाकियों को दिखेगी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो वो पता लग जाता है वो। हाँ, सबको शो होती है हाँ सर। वो सबको हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हुआ तो हम इसको लेकिन सर हीटअप तो इस पे भी जूम पे भी दोनों। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, हीटअप का ये प्रॉब्लम है कि अब तुम देखो ये जो हम जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, अब ये इसमें तुम्हारा ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें रिसोर्सेज बहुत यूज होते हैं, तो इसके लिए तुम्हारा जो हार्डवेयर है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। अब तुम खुद देखो, यू आर नॉट ऑन अ सिंपल कॉल, एक सिंपल कॉल नहीं कर रहे जिसमें कि सिर्फ आपका सिर्फ वॉइस जा रही है, इसमें आपका डाटा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका जो है यस वॉइस सर। भी जा रही है, डाटा भी जा रहा है, स्क्रीन जो है प्रेजेंट हो रही है, तो उसके लिए आपका जो हार्डवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है जो स्ट्रेस पड़ता है, तो उस वजह से वो हीटअप होता है। अगर यस आपका सर, बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं, होती है सर। ऑब्वियसली होगी वो तो, एक्चुअली उसके लिए सिस्टम थोड़ा यस सा सर। आपका जो है फास्ट चाहिए, तो इसके लिए या तो मोबाइल थोड़ा दूसरा अरेंज करो कहीं से, क्योंकि वो तो हीटअप होगा, कोई भी एप्लीकेशन पे अगर मैं सारी चीजें अगर आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो हीटअप हो गया होगा, ठीक है। एज ए तुम मैकेनिकल इंजीनियर सोच के देखो, अगर ऐसी कोई मशीन है जिसपे 3 लोड डले हुए हैं, ठीक है, तो वो हीटअप क्यों नहीं होगी वो। अगर तुम्हारे ऊपर मैं 4 काम डाल दूँ तो तुम्हारा भी थोड़ा होगा ना, तुम्हें यू विल फील सम, मतलब फैटीग आपको फील होगा, तो वैसे ही सिस्टम होगा। अब जैसे मेरा लैपटॉप है, वैसे ऐसे कभी हैंग नहीं होता, लेकिन आज हैंग हो रहा है वो। ओके सर। इट आल्सो डिपेंड्स कि कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है थोड़ा, ठीक है ना। ओके सर। तो इसमें ऐप की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तो हमारे हार्डवेयर की है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू एडियाबेटिक के बाद जो है चॉइस ऑफ सिस्टम एंड बाउंड्रीज। तो बेसिकली अभी स्क्रीन दिख रही है लोग बच्चों को? दिमाग नीचे वाले पे क्लिक कर ले अगर नहीं दिख रही। एक तो सर की 2 स्क्रीन होंगी, अब नीचे वाले पे पिन कर तो नीचे दिख जाएगी। कहाँ पे नीचे करनी है ब्रो? ये नीचे देख, नीचे एक एक सर की दो 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 तो तरफ दिखे ना सर, नीचे वाली स्क्रीन पे क्लिक कर जो नीचे वाली है। मैं एक दो पे तो सर बात कर रहे दिख रही है, हाँ दूसरे हाँ पे हाँ, प्रेजेंटेशन ठीक है, है, दिख गया। प्रेजेंटेशन वाली पे चॉइस ऑफ सिस्टम एंड क्लिक बाउंड्री। कर। ये हाँ हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ, यस सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना। सर बोलिए। यस सर। ओके, हाँ जी। ठीक है। अब ये चॉइस ऑफ सिस्टम एंड बाउंड्रीज, नाउ इसमें ये क्या है कि वी मस्ट चूज द सिस्टम फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वी वर्क ऑन। अब बेसिकली जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं उसमें क्या है कि हमें जो सिस्टम चूज करना है, ठीक है, वो हमारे डिपेंड करता है कि हमारा जो है प्रॉब्लम किस तरह की है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें इंजन की एक एग्जांपल दी है, इंटरनल कंबशन इंजन। अब उसमें सिस्टम बाउंड्रीज किस तरह की हैं अगर आप ऑब्जर्व करते हो, यू कैन सी दैट उसमें सिस्टम बाउंड्रीज जो है फिक्स नहीं है, वो दे कैन चेंज, ठीक है, वेरी कर सकती हैं वो, उसकी जो है एरिया जो है या वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे पिस्टन जो है अगर आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी सिस्टम बाउंड्रीज है वो जो है मूव कर रही है वहाँ पे, मूव कर रही हैं। यस सर। ठीक है ना। तो इट मीन्स की सिस्टम बाउंड्रीज जो है दे कैन बी फिक्स, दे कैन वेरी। मूवेबल। हाँ, यस तो सर। डिपेंड करता है कि हमारी एग्जांपल जो हमारा जो सिस्टम जो हमारी प्रॉब्लम है, हम किस तरह की प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम एक पिस्टन और उसके सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है जो मूवेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम बाउंड्री जो यस सर। फिक्स नहीं है। बाउंड्री हाँ, ये बाउंड्री पिस्टन यहाँ पे बाउंड्री भी आ यस। सकता है, पिस्टन यहाँ पे भी आ सकता है, यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सिस्टम बाउंड्री जो है फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। लेकिन इन सम केसेस सिस्टम यस बाउंड्रीज सर। आर फिक्स्ड, लाइक फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल ऑफ बॉयलर। बॉयलर आपको पता होगा, इट इज अ स्टीम जनरेटिंग यूनिट, जिसमें कि स्टीम बन के यस बाहर सर। आती है। अब उसमें उस केस में सिस्टम बाउंड्री फिक्स्ड है हमारी, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वी मस्ट क्लियर अबाउट द कि हमारा सिस्टम किस तरह का है और हमारी बाउंड्रीज किस तरह की है। इसमें इस स्लाइड में इतना ही बताया बस, ठीक है। उसके नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है इसकी। अब राइज ऑफ टेम्परेचर इन अ वाटर केटल, मतलब वाटर केटल के अंदर अगर पानी को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एग्जांपल अभी नहीं करते, डिस्कस बाद में करेंगे, फिर अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। आगे थोड़ा सिस्टम एंड बाउंड्रीज के ऊपर जो है प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो
इसको छोड़ के मैं दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। सर वैसे हमने ये 12th क्लास में की हुई है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, बाई 11th में हाँ 11 क्लास में या एक्चुअली ये थोड़ा जो हमें एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही अभी, क्योंकि उसके बाद इसका थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है आगे। सर उस वक्त सिर्फ ओपन और क्लोज सिस्टम, बस 2 टाइप के सिस्टम थे। एडियाबैटिक नहीं होगा ना उसमें? नहीं नहीं सर। चारों थे सर, अरे लेकिन इतना डीप नहीं था। डीप नहीं था। सिंपल डेफिनेशन दिखाई हुई थी सर। वो तो With एक्चुअली example। क्या है कि तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारा उसी का आगे एक्सटेंशन है, ठीक है ना। अभी हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, तुमने हीट पढ़ा होगा, तुमने मतलब जितना भी सिस्टम है, आरएसी पढ़ा होगा, वर्क पावर सब कुछ। लेकिन अब इंजीनियरिंग के अंदर वो जो पढ़ा है वो बेसिक पढ़ा है, उससे आगे हमने जो है फर्दर आगे स्टडी करना है जो भी है। ओके सर। तो इसके लिए तुम्हारे बेसिक्स तो तुम्हें क्लियर होने चाहिए। अब ये आ गया हमारा यहाँ पे है जो तो इसमें जो है सबसे पहले वी विल डिस्कस मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये किसी को आइडिया है इसके बारे में? अगर तूने पढ़ा हुआ है तो किसी ने, तो इसके बारे में पता है कुछ? हेलो, नो सर। माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक हम्म, माइक्रोस्कोपिक तो मतलब तो पता है सर, डेफिनेशन तो पता है भी क्या होती है। चलो बताओ मुझे क्या होती है। सर मैक्रोस्कोपिक जो बहुत बड़े बड़े फील्ड के लिए, मतलब बहुत बड़ी फील्ड के लिए इस्तेमाल हो, उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। ज्यादा बड़ी चीजों को पढ़ते हैं जब, उसको माइक्रोस्कोपिक फील्ड में माना जाता है। ओके। जो माइक्रो है वो स्मॉल स्मॉल थिंग्स के लिए, जो बिल्कुल छोटी होती हैं, जैसे हमारे जर्म्स बैक्टीरिया है, ऐसे ऐसी चीजें, ये माइक्रोस्कोपिक में पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही पढ़ा है सर, ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। यही ये डेफिनेशन पढ़ी। स्क्रीन आई थिंक दिख रही होगी सबको। अब बेसिकली क्या है कि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है दो तरह के से हम वी कैन स्टडी अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बेसिकली जो है थर्मोडायनेमिक्स जितने भी आगे इसके आगे स्टडीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। और एक होती है माइक्रोस्कोपिक MICRO माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। पहला जो जो है माइक्रोस्कोपिक MICRO माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है, इसमें क्या करते हैं, वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम ऑन अ ग्रॉस लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो सिस्टम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ग्रॉस लेवल पे हम जो स्टडी करते हैं। ग्रॉस लेवल का मतलब क्या हो गया कि हम उसको जो है एक क्लस्टर्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे अगर यहाँ नीचे डायग्राम देखो तुम, अगर ये सिस्टम है पूरा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं कोई गैस के, हम उसके क्या कहते हैं पूरा का पूरा एक जो है चंक ले लेते हैं। जैसे कि एक चंक के अंदर जो है इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, दूसरे के अंदर इतने हो गए, और फिर उन चंक को स्टडी करते हैं बजाय कि इंडिविजुअली हम स्टडी करने के मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस लेवल मतलब एक बड़े लेवल पे उसको स्टडी करते हैं। बड़े लेवल का ये मतलब नहीं है कि पूरा बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। बड़े लेवल का मतलब ये है कि हम उसको एक मतलब ज्यादा उसकी बारीकी में नहीं जाते, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा जो है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, if we study the properties of system based on pressure, temperature, velocity, momentum, इस तरह से जो भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अगर उसको हम स्टडी करते हैं तो वो एक तरह से मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी होगी है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक स्टडी का बेनिफिट ये है कि एक ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें हमारी जो है हमें बहुत कम क्वांटिटी से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। वी नीड नॉट टू स्टडी या गो टू इनटू वेरी डेप्थ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एंड वी कैन परसीव और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इवन हम अपनी सेंसेस से उसको परसीव कर सकते हैं कुछ हद तक। जैसे कि आपको जो है टच करके पता लग जाएगा टेम्परेचर कितना है, ठीक है, आपको फील करके पता लग जाएगा कि प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो भी स्टडी है जिसमें कि हम जो है एक बल्क में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी को क्या कहते हैं,
कोई भी ऐसी स्टडी जिसमें कि हम इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, हर एक एटॉमिक लेवल पे, जैसे कि इफ वी कंसीडर ईच मॉलिक्यूल एज अ सेपरेट एंटिटी टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम में जितने भी उसके अंदर गैस के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसको इंडिविजुअली हम स्टडी करें, जैसे यहाँ पे सपोज करो ये देखो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो 9 के 9 को हमने इंडिविजुअली स्टडी करना है। और स्टडी क्यों करना है? उसकी हर एक एटम की इंडिविजुअल जो है बिहेवियर को चेक करने के लिए। जैसे वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल एट इंडिविजुअल लेवल, जैसे स्टडी द फॉर देयर इक्वेशंस, इंडिविजुअल इक्वेशंस, और फिर इन इंडिविजुअली जितनी भी इक्वेशंस आई हैं उन सबको जो है उनको एनालिसिस करके फिर उसका हम अल्टीमेट बिहेवियर निकालते हैं कि कैसा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पे है। आपको हर एक एटम को जो है इंडिविजुअली इसकी बिहेवियर को चेक करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। तो ये मोस्टली कहाँ पे? कंपोनेंट्स चाहिए। हाँ, ये साइंटिफिक लेवल पे होता है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में, या फिर जहाँ पे आजकल रिसर्च हो रही है एटॉमिक लेवल पे, वहाँ पे होता है ये। तो इस वजह से हमारे पास जो थर्मोडायनामिक्स की 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वाली तो है मैक्रोस्कोपिक, जो कि हम जो इस सब्जेक्ट में हम जो अप्रोच होगी हमारी वो मैक्रोस्कोपिक होगी, फर्स्ट वाली अप्रोच होगी, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल, बट वी आर गोइंग टू स्टडी देम एट अ ग्रॉस लेवल। ठीक है, तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, CLASSI, ये लिखा हुआ है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, जो सेकंड वाली स्टडी है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। ये जो है स्टडी है, ये मोस्टली साइंस जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या बड़ी बड़ी लैब्स हैं वहाँ पे ये इस तरह की स्टडी होती है। ठीक है, तो ये 2 अप्रोच को आपने याद रखना है। अब इस स्टडी में जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ये कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, इसको हम अपने सेंसेस से जो है जज नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो बहुत ही टीडियस और एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल ऑपरेटर्स चाहिए और ये साइंटिफिक लेवल पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका, छोड़ दो उसके आगे चलते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये भी आपने पढ़ा हुआ है आई थिंक थोड़ा बहुत। हेलो हेलो सर, यस सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना? चलो, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या ये होता है? पढ़ा है सर। थोड़ा Yes. बताओ मुझे क्या होता है। एनीवन? सर अलग अलग लॉ से निकली है इसी पे, मतलब अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल सकती है किसी भी सिस्टम की, उस पे डिपेंड करता है। जैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी क्या क्या फर्क पड़ता है वॉल्यूम पे। उसकी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी सिस्टम पे। स्टेट ऑफ अ सिस्टम अलग चीज है। अब आपने अगर कभी ग्राफ बनाया हो, ठीक है, मुझे मुझे लॉ की कौन सी लॉ थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने पढ़ी हुई थी लॉ, जिसमें जिसमें भी मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ता है अगर वो अपना वो हो, क्या होते हैं वो, एक ही जैसे अगर एक ही जैसे मॉलिक्यूल हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर अलग अलग हो तो क्या फर्क पड़ता है, उसको कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सटेंड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उसकी वॉल्यूम पे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? बेसिकली अब थर्मोडायनामिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो हमारा सिस्टम है वो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम जो है सराउंडिंग्स के साथ जो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब हमें जो सिस्टम जब इंटरेक्ट करता है, जब भी उसमें कोई चेंज होती है तो देयर इज अ चेंज ऑफ सिस्टम प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे इस तरफ जो है आपका वर्टिकल साइड पे प्रेशर है, ठीक है, ऑर्डिनेट्स वाली तरफ जो आपका वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम है हमारा, उसको उसके सिस्टम की हम कह रहे हैं उसकी कि उसकी नाउ सिस्टम इज एट स्टेट 1। ठीक है, स्टेट 1 में उसकी प्रेशर जो है P1 है और वॉल्यूम उसका V1 है। यानी सिस्टम को अगर डिफाइन करना है हमने एक पर्टिकुलर स्टेट पे, तो हमें कुछ सिस्टम प्रॉपर्टीज को उसकी डिफाइन करना पड़ेगा कि इसकी ये सिस्टम प्रॉपर्टीज हैं, ये है। जैसे कि लेट अस से अ सिस्टम इज प्रेजेंटली एट अ स्टेट 1, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी प्रेशर की और वॉल्यूम की। जैसे कि उसमें प्रेशर 10 बार होगा और वॉल्यूम जो है लेट अस से 5 क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, जैसे ये आपका पिस्टन स्लेटर अरेंजमेंट है,
यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रेशर P1 एंड V1, ये सॉरी मैंने उल्टा बना दी, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो है आपके देख सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम जो है कम है फर्स्ट पॉइंट पे। अब उसके बाद क्या हो गया कि सिस्टम जो है इट इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग्स एंड इट अंडरगो अ चेंज, और ये अपना पॉइंट 2 पे आ गया है सिस्टम। नाउ द initial coordinates are P1 V1 and final coordinates becomes P2 V2, यानी कि सिस्टम का जो स्टेट चेंज हो गया वो सेकंड स्टेट में आके उसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं P2 एंड V2, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्टेट जो है चेंज हो गई उसकी। तो whenever there is a change of state we can say there is a system undergoes a process। जब भी सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम जो है एक प्रोसेस को कंप्लीट करके दूसरे पॉइंट पे पहुंचा है वो, ठीक है। सो इस तरह से हम वी कैन डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड प्रोसेस क्या होता है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एज डिफाइंड बाय द सिस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ आया कुछ? यस सर। थोड़ा बहुत आ गया सर। ठीक है। यस सर। अब मैंने जो आपको समझाया है इसमें आपका सिस्टम जो है स्टेट, इसमें स्टेट को आपके डिफाइन किया मैंने इस पहले डायग्राम में कि यहाँ पे स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट 2 है, लेकिन सर इसमें डिफरेंट बोलो सर, इसमें डिफरेंट लॉ भी पढ़नी पड़ेंगी कि सीधा सिंपली ऐसे ही पढ़ना है? नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। लॉ से पढ़ेंगे तीनों Yes, sir. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी, ठीक है। अभी तो ये बेसिकली हमने थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी हमारी डेफिनेशंस या जितने भी चीजें टर्म्स यूज होते हैं उसको पहले समझना जरूरी है ना, तभी समझ आएगा आपको, ठीक है। अभी पढ़ने से पहले ये एक तरह से उसका बेसिक्स है। अब यहाँ पे प्रोसेस sir. की बात हो रही है, सेकंड जो बी उसमें हमारे पार्ट में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस। लेट अ सिस्टम flow follow a path in a moving from अरे state ये 1 to लगा रहा state 2। हूँ यार। तो प्रोसेस क्या हो गया, a process is said to take place when system shifts from point state 1 to state 2। तो बेसिकली प्रोसेस किसको कहेंगे हम, जब भी सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब शिफ्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे दो पिस्टन की दो स्टेट्स हैं, एक में पिस्टन जो है टॉप मोस्ट पोजिशन पे, एक में पीछे की तरफ है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो सिस्टम है ये यहाँ से शिफ्ट हो गए इसमें आ गया सेकंड में, तो इसकी ये सिस्टम की दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वैल्यूज, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और है। आपकी नेक्स्ट क्लास भी तो होगी, कितने बजे है? हेलो 11:30 सर, 11:30। 11:30 पे होगी सर। फिर आपको बीच में वो चेंज भी करना होगा, तो अभी ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसा करो, सभी ने अपना अपना रजिस्टर जो है एक रजिस्टर लगा लो उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा बहुत आपको असाइनमेंट देना शुरू करूंगा, काम जो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। और सर, हाँ जी मैंने बोलो। फर्स्ट क्लास की लगाई थी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, वो यूट्यूब पे देख लेना, मैंने आपको उसको ओपन कर दूंगा, थोड़ी उसमें साउंड कम है, ठीक है सर। उसमें देख लेना। सर लिंक भेज देना आप ग्रुप में। लिंक में उसमें आप भेजा हुआ है सबको, उसी लिंक पे दोबारा ठीक है क्लिक कर सर। लेना, ठीक है सर। ठीक है। फर्स्ट क्लास के सारे उसमें ही है ना? सब कुछ है उसमें, ठीक है। ठीक है। ओके, thank you। ऑल द बेस्ट, ठीक है। और ये थैंक इनको यू सर। रिवाइज कर लेना थैंक यू सर, सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बाय।